اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ جلد چہارم، حکایت نمبر 46، انسانوں، فرشتوں اور حیوانات میں فرق کا بیان۔ اللہ نے فرشتوں میں عقل رکھی جس کا مقتضا طاعت و بندگی ہے، لہذا فرشتوں سے گناہ کا صدور نہیں ہوتا، اور ملائکہ کی غذا صرف عشق خداوندی ہے۔ حیوانات میں صرف شہوت رکھی، جنسی ہو یا کھانے پینے کی۔ انسان میں عقل اور شہوت دونوں رکھی۔ حیوانات میں صرف خواب و خور کی فکر ہے اور وہ شقاوت اور سعادت سے غافل ہیں۔ انسان روح انسانی اور جسم سے مرکب ہے۔ روح میں ملکیت ہے اور جسم میں حیوانیت ہے۔ جسم کا تعلق عالم ناسوت سفلی سے ہے اور روح کی پرواز عالم بالا کی طرف ہے۔ انسان کی ان دونوں قوتوں میں باہم تصادم رہتا ہے۔ انسان روح کے تقاضوں کو پورا کرتا ہے تو فرشتوں سے بڑھ جاتا ہے، کیونکہ اس نے جسمانی خواہش کو مغلوب کیا۔ اگر انسان شہوت سے مغلوب ہو جاتا ہے تو حیوانات سے بدتر ہوتا ہے، کیونکہ حیوانات میں تو عقل نہ تھی۔ فرشتوں میں اور حیوانات میں ان متضاد طاقتوں کی کشمکش نہیں ہے۔ انسان ان کی کشمکش کی وجہ سے عذاب میں ہے۔ اب انسانوں کی بھی 3 قسمیں ہیں۔ ایک قسم وہ ہے جس نے خالصتاً ملکیت اختیار کی، جیسے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے کہ فرشتوں ہی میں جا شامل ہوئے۔ غصہ و حرص وغیرہ یہ سب چیزیں جسم کی بدولت ہیں۔ مجاہد لوگ اخلاق ذمیمہ کو ختم کرنے کے لیے ریاضت کرتے ہیں۔ جب وہ نہ رہے تو مجاہدوں کی بھی ضرورت نہیں رہتی۔ انسانوں کی ایک قسم وہ ہوتی ہے جو بالکل حیوانات کی طرح ہوتی ہے۔ ان میں ملکیت کا مادہ تھا لیکن وہ کم ظرف تھے، اس لیے آہستہ آہستہ ملکیت بالکل ختم ہو گئی۔ جس طرح روح نکل جانے سے جسم مردہ ہو جاتا ہے، اسی طرح جان کی جان نکل جانے سے روح مردہ ہو جاتی ہے۔ جب روح میں روح کے اوصاف باقی نہ رہیں تو روح مردہ ہو جاتی ہے۔ ایسے لوگ زاغ صفت انسانوں کی پیروی کرنے لگتے ہیں تو یہ کوے کی طرح مکر، حرص، مردار خوری کے عادی ہو جاتے ہیں۔ جب روح اپنے خواص کھو بیٹھے تو وہ جسم ہی ہے۔ جس روح میں روح کے خواص نہ رہیں وہ بہت پست اور ذلیل ہے۔ عالم ناسوت میں ان کی مشغولیت حیوانوں سے بھی بڑھ جاتی ہے۔ اب یہ وہ مکاریاں کرتے ہیں جو حیوانات سے بھی متصور نہیں ہے۔ عالم ناسوت کے حیوانات مشقت نہیں اٹھاتے ہیں، لیکن مکار انسان وہ مشقت اٹھاتے ہیں۔ دنیا کی محبت میں کی گئی دستکاریوں کا تعلق عالم ناسوت سے ہے، ملائے اعلیٰ سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ دنیا میں جس قدر بھی علوم ہیں سب عالم ناسوت کی تعمیر و ترقی کے لیے ہیں، جو حیوانات کی آخری منزل ہے۔ یہ علوم چند روزہ زندگی کے لیے ہیں اور احمق اہل عقل انہیں رموز تصور کرتے ہیں۔ راہ طریقت اور اس کی منازل دل اور صاحب دل جانتا ہے۔ وہ دراصل وہ رموز کہلانے کے مستحق ہے۔ جب انسان روح حیوانی کھو بیٹھے تو وہ حیوان ہے۔ اسی لیے قرآن میں ایسے لوگوں کے بارے میں کہا گیا ہے کہ وہ چوپاؤں کی طرح ہیں۔ روح انسانی بیدار ہے اور ان کی روح سوئی ہوئی ہے۔ یہ روح عقل اور مقتضیات سے اس طرح غافل ہے جیسے کوئی سویا ہوا ہو اور اپنے حواس کو عقل کے مقتضیات کے برعکس کام میں لائے۔ جب ان میں بیداری آئے گی تو ان کو حواس کے الٹا ہو جانے کا احساس ہوگا۔ نیند سے بیدار ہو کر انسان سمجھتا ہے کہ نیند کی حالت میں اس کے حواس صحیح کام نہیں کر رہے تھے۔ قرآن پاک میں ہے کہ ہم نے انسان کو بہترین ساخت پر پیدا کیا، پھر ہم اس کو کم تر سے کم تر مخلوق میں لوٹا لائے۔ ایسے لوگوں کی صحبت سے بچنا چاہیے جیسا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چاند سورج کو الوہیت سے جدائی اختیار کر لی تھی کہ میں غروب جانے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ ایسا انسان بدترین مخلوق ہے، اس لیے کہ اس میں بھلائی کی استعداد نہیں ہے، اس نے اسے خود تباہ کر دیا ہے۔ دیگر حیوانات میں استعداد ہی نہیں تھی، لہذا وہ بہیمیت میں معذور ہیں۔ جب انسان نے استعداد کو ختم کر دیا تو جو غذا وہ استعمال کرے گا مزید حماقت کا سبب بنے گی۔ یہ عام مومنین کی قسم ہے جن کا
नफ्स लवामा है। इन इंसानों की अक्ल नफ्स रूह और तन की कशमकश में रहती है। पहला ग्रोह जिसका बयान मुस्तगरिक मुतलक शुदा में था, उनका नफ्स मुतमइन्ना है। दूसरा ग्रोह जिसका बयान किस्म दीगर बाखिरा मुल्हिक शुदनत में था, उसका नफ्स अम्मारा है। तीसरे ग्रोह की कशमकश को मजनू और उसकी ऊँटनी के किस्से से वाज़े किया गया है। जिल्द चहारुम हिकायत नंबर 47। अक्ल और नफ्स का मुकाबला मजनू और उसकी ऊँटनी के झगड़े की तरह है। मजनू को मालूम हुआ कि लैला आ रही है तो वो उसके इस्तकबाल के लिए चला। जिस ऊँटनी पर वो सवार हुआ उसके बच्चे को घर में छोड़ गया। रास्ते में उसकी और ऊँटनी की कशमकश शुरू हुई। मजनू चाहता था कि ऊँटनी आगे बढ़े ताकि लैला का विसाल हो सके। ऊँटनी घर की तरफ जाना चाहती थी ताकि अपने बच्चे के पास पहुंचे। मजनू को जरा सी गफलत होती तो वो ऊँटनी पीछे को पलट जाती। चूंकि मजनू का जिस्म इश्क से पुर था, इसलिए वो ऊँटनी की ऐसी हरकत से बेहोश हुआ जाता था। इंसान की अक्ल उसके हर काम की निगरानी करती है, मगर मजनू तो इश्क में बेअक्ल हो चुका था। नाका को होश था। वो जब देखती कि उसकी मुहार ढीली है, फौरन समझ जाती कि मजनू गाफिल है और वो पीछे की तरफ चल पड़ती। जब मजनू को होश आता वो देखता कि ऊँटनी मीलों पीछे वापस हो गई है। मजनू इसी हालत में कुछ अरसा रहा। फिर उसने सोचा कि दो मुतजाद सिमतों के आशिकों का बाहमी सफर तय नहीं हो सकेगा। ऊँटनी मजनू का रास्ता खोटा कर रही है और मजनू ऊँटनी के लिए खुराबी है। मजनू ने ऊँटनी को छोड़ दिया और खुद चल पड़ा। इसी तरह जो शख्स जिस्म का साथ नहीं छोड़ेगा गुमराह ही रहेगा। जान और जिस्म की भी ख्वाहिशात जुदागाना है, इन दोनों का साथ नहीं निभ सकता। जान की परवाज आलम बाला की जानिब है और जिस्म को जमीन पसंद है। जब तक इंसान की रूह जिस्म के साथ रहेगी मकसद हासिल ना होगा। हकीम सनाई रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं, अल्लाह का इश्क लैला के इश्क से कम नहीं है। जब मजनू लैला के इश्क में ऊँटनी को खैर बात कह सकता है तो खुदा के इश्क में जिस्म को और उसकी सवारी को खैर बात कह देना चाहिए। अल्लाह के रास्ते का गेंद बन जा और लुढ़कता हुआ उसके दरबार तक पहुंच जा। इस सफर में इब्तिदा तो खुद कोशिश करेगा, फिर अल्लाह की जानिब से कशिश शुरू हो जाएगी। जज्बे खुदाबंदी से जो रफ्तार होगी वो महज अताए खुदाबंदी है। ये खुदाई जज्ब आम जज्ब नहीं है जो हर रास्ते में हासिल हो जाए। ये वो जज्ब है जिसको हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मेहरबानी ने कायम किया है और उनके जानशीनों को हासिल है। जिल्द चहारुम हिकायत नंबर 48। तन्हा गटने पर बादशाह को गुलाम की शिकायत लिखने का किस्सा। गुलाम की इंतहाई हमाकत थी कि उसने शाह को गुस्से से भरा हुआ खत लिखा, और वो भी नाजुक मिजाज शाह को। ऐसे ही मिसाल हमारे जिस्म की है। इसको खत समझो और देख लो कि ये शाह के पास जाने के लायक है या नहीं। इस खत को गौर से पढ़कर इबारत शाह के मुनासिब है या नहीं। अगर नहीं तो खत फाड़ दे, दूसरा लिख और तदबीर कर। जिस्म के इस खत को खोलना और पढ़ना आसान नहीं है। अपने जिस्म के खत को मखसूस लोग ही पढ़ सकते हैं। अवाम को अपने दिलों के राजों का एहसास नहीं होता है। हम अपने नेक कामों की फहरिस्त पर इक्तिफा कर बैठते हैं जिसमें सिर्फ उन्वानात होते हैं, यानी जाहिर का एतबार कर लेते हैं। ये उन्वानात अवाम को फंसाने का जाल है। वो खत के मजमून को भी उन्वान जैसा समझ बैठते हैं, यानी बातिन को जाहिर जैसा समझ बैठते हैं। ईमान का ज़बानी इकरार उन्वान है, असल ईमान तो दिल में है। अगर सिर्फ ज़ुबानी ईमान है और कल्बी तस्दीक नहीं है तो ये निफाक है। जब तू बादशाह के सामने तोहफा में कोई बोरा भरा हवा ले जा रहा है तो कम से कम ये देख ले कि उसमें क्या चीज़ है। अगर बादशाह के मुनासिब नहीं है तो बोरा खाली कर ले और इसमें वो कुछ भर ले जो बादशाह के मुनासिब हो। ये बुरी बात होगी कि तू मामूली रेत का बोरा भर कर ले जाए। अगर इंसान अपने जिस्म को अखलाक हसना से नहीं भर सकता तो कम से कम इतना हो कि अखलाक रजीला से वो खाली हो। जिल्द चहारुम हिकायत नंबर 49। एक फकीह की पगड़ी का किस्सा।
एक फकीर चीथड़े अपनी पगड़ी में भरे हुए था ताकि वो बड़ी नजर आए। वो हतीम यानी मस्जिद में एक मजलिस में शामिल होना चाहता था। उसने बाहर से पगड़ी को खूब बड़ा किया और सजाया। पगड़ी का जाहिर तो बहिश्त जैसा, लेकिन अंदर कपड़ों के छोटे छोटे टुकड़े भरकर दिखावे का निशान बना दिया था। सुबह सुबह बड़ी शान से वो मदरसे की तरफ रवाना हुआ ताकि अपनी शान दिखाकर नजराने वगैरह हासिल करे। रास्ते में कोई चोर खड़ा था। वो उसकी पगड़ी उतार कर भागा कि काफी कपड़ा हाथ लगेगा। फकीर ने उसे आवाज दी कि ऐ बेटा, इसे पहले खोल कर तो देख ले, फिर ले जाना। ये पगड़ी मैंने तुझे बख्श दी। उसने भागते भागते पगड़ी को खोलना शुरू किया तो चीथड़े बिखर गए और छोटा सा कपड़े का टुकड़ा बच गया। चोर ने कपड़े के टुकड़े को जमीन पर फेंक दिया और फकीर पर नाराज होने लगा कि अगर मैं तेरी पगड़ी के पीछे ना पड़ता तो कोई अच्छी चीज चुरा लेता। ये तूने क्या फरेब किया है? फकीर बोला, ठीक है, इब्तिदा में तुझे धोखा लगा, लेकिन आखिर में तो मैंने तुझे समझा दिया था। ये दुनिया भी अव्वल मकर करती है, लेकिन आखिर में अपने ऐब जाहिर कर देती है। दुनिया आलिम कौनो फसाद है, इसमें बनाव भी है और बिगाड़ भी है। बनाव फरेब देता है तो बिगाड़ इसका ऐब जाहिर कर देता है। दुनिया का बनाव और हुस्न इंसान को अपनी तरफ खींचता है तो बिगाड़ इसकी बेसबाती जाहिर करता है। वही लड़का जो जवानी में अपने हुस्न की वजह से लोगों का आका बनता था, बुढ़ापे में बेअकल होकर रुस्वा होता है। रोगनी और मज़ेदार ग़िज़ाएं फुजला बनकर बदबू पैदा कर देती हैं और ज़ुबान हाल से कहती हैं कि मेरी पहली हालत जाल का दाना थी, तो फंस गया तो दाना गायब हो गया। बड़े से बड़ा बहादुर बुढ़ापे में नकारा हो जाता है। इसलिए इंसानों को दुनिया के बनाव के बाद बिगाड़ को हमेशा अपने पेश नज़र रखना चाहिए। दुनिया का बिगाड़ जाहिर कर देता है कि उसका बनाव इंसानों के लिए जाल है। इंसान का ये उज़्र बेकार है कि दुनिया ने फरेब दिया। तमाम अज्जाए आलिम का यही हाल है कि उनकी इब्तिदा बनाव है और अंजाम बिगाड़ पर है। दुनिया के अंजाम पर जो नजर रखेगा वो नेक बख्त है। हर चीज का आगाज और अंजाम को देख ले। शैतान की तरह ये न कर कि कुछ देख ले और कुछ ना देखे। उसने हजरत आदम अलैहिस्सलाम का एक जुज़्व देखा और दूसरे पर नजर ना की। जिस्म को देखा, रूह को ना देखा। मर्दों को औरतों पर फजीलत उनकी आकबत बीनी की वजह से है। अगर ताकत की वजह से हो तो इंसान से शेर और हाथी अफसल होने चाहिए। दुनिया के उरूज ज़वाल पर हमेशा नजर रखो। दुनिया की नापायदारी से सबक हासिल करके मुत्तकी ख्वाब गफलत से बेदार हो जाते हैं। दुनिया के जाहो जलाल पर बदबख्त फरीबता होते हैं। दुनिया के उरूज ज़वाल की आवाज़ सुन। ज़वाल की आवाज़ कहती है कि दुनिया की रौनक ख़त्म होने वाली है। दुनिया की रौनक अपनी तरफ बुलाती है और उसका ज़वाल कहता है कि मेरे करीब ना आ। अगर इंसान दुनिया की एक आवाज़ कबूल कर लेता है तो दूसरी आवाज़ से बेताल्लुक हो जाता है। एक आवाज़ कहती है मेरी रौनक देख, दूसरी आवाज़ कहती है दुनिया के अंजाम को देख ले। अगर उसने सिर्फ आगाज़ की ही आवाज़ सुनी तो वो उसके दिल में घर कर लेगी और फिर वो अंजाम की आवाज़ सुनना पसंद नहीं करेगा। इंसान जब आगाज़ पर फरीफ्ता होता है तो अंजाम से आंखें बंद कर लेता है। निज़ाम आलम जज़ब पर कायम है। हर चीज़ किसी दूसरी चीज़ को खींचती है। कुफ्र काफिर को अपनी तरफ खींचता है, नेकी नेकों को अपनी तरफ खींचती है। ये मानवी कशिश और जज़ब है। ज़ाहरी कशिश को भी देख ले कि कोहरबा कागज़ को और तिनके को खींचती है, मकनातीस लोहे को खींचता है। तुम में जैसी सलाहियत होगी उसी तरफ से तुम्हारे लिए कशिश होगी। मूसा अलैहिस्सलाम की कशिश फिरौन और हमान की तरफ नहीं है, वो उनको अच्छे नहीं लगते। गधे के मैदे को घास की कशिश है। अच्छों की सोहबत इख्तियार करने के लिए उनकी कशिश को देख लो कि किस तरफ है। उनकी कशिश का तुम्हें पता ना चले तो उनके शह की कशिश को देख लो और अच्छाई और बुराई का फैसला कर लो। इंसान चूंकि अशरफुल मखलूकात है, उसकी गिज़ा बदन के अशरफ हिस्से से हासिल होती है। आरिफ बिल्लाह अशरफुल मखलूकात में फर्द आला है। उसको ग़ज़ा अल्लाह की जानिब से मिलती है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सिद्दीकीन को
اللہ سے براہ راست غذا حاصل ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی تقسیم میں کسی پر جبر نہیں ہوا اور نہ ہی کسی پر ظلم ہوا ہے۔ اپنی صلاحیت کے مطابق جب انسان کوئی برا کام کرتا ہے تو اس کو شرمندگی ہوتی ہے۔ اگر جبر ہو پھر یہ شرمندگی نہیں ہونی چاہیے۔ ظالم مظلوم کا نگہبان نہیں ہوتا ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ ہر بندے کا نگہبان ہے، رزق مہیا کرتا ہے، صحت دیتا ہے۔ لہٰذا خلاصہ یہ ہے کہ جب دربار خداوندی میں آنا جانا ہو تو اپنی حالت کو مد نظر رکھو۔ جلد چہارم، حکایت نمبر 50۔ دنیا سے دھوکہ کھانے والوں اور نفس کے قیدیوں سے خطاب۔ جن لوگوں کو من جانب اللہ غذا حاصل ہوتی ہے ان کے بالمقابل گروہ کا اب تذکرہ کیا جاتا ہے۔ ایک دنیا دار شیخ کی مکاری بجلی کی کون کی طرح ہے جس کے ذریعے راستہ طے نہیں کیا جا سکتا۔ اہل اللہ میں کبھی باہمی مخالفت نہیں ہوتی، وہ ایک دوسرے کا مال یعنی کمالات نہیں چھینتے۔ عالم آخرت کی نعمت ناقابل زوال ہے اور اس کی خوشی کبھی غم میں تبدیل نہیں ہوتی ہے۔ دنیا دار اپنے نفس کے بندے ہیں اور نفس بے وفا ہوتا ہے، اس لیے دنیا دار بھی بے وفا ہوتے ہیں۔ نفس کا قبلہ فسق و فجور ہے۔ دنیا دار خواہ کتنا ہی ذہین ہو، جب وہ آخرت سے غافل ہے تو مردہ ہے۔ دنیا دار کو جب کبھی ہدایت میسر آتی ہے تو یوں سمجھ لو کہ مردہ زندہ ہو گیا۔ نفس انسان کو دھوکے میں مبتلا کرتا ہے اور یقین دلاتا رہتا ہے کہ عمر دراز ہے، آئندہ نیکی کرنے کا موقع ہے، فی الحال دنیا کے مزے اڑا لو۔ وہ آواز تلاش کر جو کبھی گمنام نہ ہو، اور وہ نور حاصل کر جس کے لیے غروب ہو جانا نہیں ہے، اور وہ نور صرف اہل حق کے پاس ہے۔ اس دنیا کی ساری شان و شوکت اگرچہ انسان کو اپنی طرف کھینچتی ہے، لیکن موت ان کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی سمجھو جس نے جادوگروں کی جادوگری کو نگل کیا۔ اسی طرح موت ان تمام ہنرمندیوں کو نگل جائے گی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اس معجزے سے دنیا کی تاریکی چھٹ گئی تھی اور نور خداوندی اس تاریکی کو نگل گیا تھا۔ خدا کے اس نور مطلق میں اس تاریکی کو نگل جانے سے کوئی اضافہ نہ ہوا، وہ پہلے ہی کامل و مکمل تھا۔ تمام دنیا کا ایمان لانا خدا کی خدائی میں اضافہ نہیں کر سکتا۔ کائنات کو اللہ نے اس لیے پیدا فرمایا ہے کہ اس کے پہچاننے کی نشانیوں میں اضافہ ہو جائے۔ وہ فرماتا ہے کہ میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں، تب میں نے مخلوق کو پیدا کیا۔ ذات اور نشانیوں کے اضافے میں فرق ہے۔ کسی ذات میں اضافہ اس بات کی دلیل ہے کہ پہلے وہ ناقص تھی۔ ذات قدیم حدوث اور نقصان سے بالا ہے۔ اگرچہ یہ مضمون مشکل ہے لیکن تو سنتا رہ، اللہ سمجھنے کی توفیق دے دے گا۔ معارف اور حقائق کے نقطے اللہ ہی کی توفیق سے سمجھ میں آتے ہیں۔ جلد چہارم، حکایت نمبر 51۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دل میں ڈرنا اور اللہ کا فرمانا کہ تو نہ ڈر، یقیناً تو اعلیٰ ہے کی تفسیر۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ڈرنے کی وجہ جادوگروں یا سانپوں کا خوف نہ تھا، بلکہ یہ بات تھی کہ لوگ جادو اور معجزے میں فرق نہ کر سکیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں تمہارے معجزوں کو ظاہر کر دوں گا اور لوگ تیرے معجزوں اور جادو میں فرق سمجھ جائیں گے۔ میں مومنوں کے ایمان میں اضافہ کر دوں گا، جادوگروں کا تمام جوش و خروش کافور ہو جائے گا اور تمہیں غلبہ نصیب ہوگا۔ چنانچہ عصا کے معجزے کے بعد بڑے بڑے جادوگروں کی کاریگری حقیر اور ذلیل کر دی گئی۔ ہر زمانے میں کوئی نہ کوئی ہنر باعث فخر رہا ہے، لیکن معجزے کے سامنے سب ہنرمان پڑ گئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں طب کا زور تھا جو ان کے دم کے سامنے بیکار ہو گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں فصاحت و بلاغت کا زور تھا جو قرآن کے سامنے ماند پڑ گئی۔ جادوگری کی شہرت اب بصورت لعنت اور معجزے کی شہرت بصورت عرفت و بلندی اب تک باقی ہے۔ کھوٹے کی رونق صرف اس وقت تک ہوتی ہے جب تک کسوٹی نہ ہو، کسوٹی کے سامنے وہ بے رونق ہو جاتا ہے۔ یہی حال معجزوں کے مقابلے میں ان ہنرمندوں کا ہوا۔ جب کسوٹی نہ ہو تو کھوٹا کھرے کی برابری کا دعویٰ کرتا ہے۔ اگر گناہ گار اپنے گناہوں پر زندگی میں نادم ہو جاتا ہے تو آخرت میں بدبختی سے نجات پا جاتا ہے اور توبہ کر کے اللہ کی رحمت کا امیدوار بن جاتا ہے۔
जब इंसान अपने गुनाहों पर नादिम होता है तो रहमत खुदाबंदी उसके दिल शिकस्तगी को रफा कर देती है। जिसने आखिरत को पेश नजर रखा, रहमत खुदाबंदी उसकी दस्तगीरी करती है। उन लोगों के रुतबे जिन्होंने आखिरत का ध्यान रखा, अवाम की जान और आंख के लिए बायस रश्क है। दुनिया में हर खरी चीज की सूरत में एक खोटी चीज भी होती है, जिसमें दोनों में इम्तियाज करने की सलाहियत ना हो, उसकी तबाही यकीनी है। झूठे शेख अगर अंबिया अलैहिस्सलाम और औलिया रहमतुल्लाह अलैहिम की पैरवी करें तो राह रास्त हासिल कर सकते हैं। जिल्द 4 हिकायत नंबर 52। झूठे मुद्दई को दावे से बाज रखना और अंबिया अलैहिस्सलाम और अल्लाह की पैरवी का हुक्म देना। मुसैलमा कज़्ज़ाब ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नकल में नबूवत का झूठा दावा किया। चंद लोग उसके गर्विदा भी हो गए, लेकिन चूंकि खोटा था, जिल्लत के साथ मारा गया। याद रख, हमेशा किसी भले की पैरवी कर जिसे दुनिया का माल जमा करने का लालच ना हो। वो सच्चा आदमी तुझे बताएगा कि किस तरफ निजात है और किस तरफ तबाही है। बास झूठे शेखों ने सच्चे शेखों की चंद बातें रट ली हैं, लेकिन हकीकत से मारूम है। अगर कूंज हुदहुद की बोली सीख भी ले तो उसके पास वो नाज़े सुलेमानी कहाँ है जो हुदहुद ने बल्कीस को सबा में जाकर दिखाया था। हकीकी परों से उड़ने वाले और फर्जी पर लगाने वाले में इम्तियाज करना चाहिए। पहली उम्मतों पर हलाकत इसी वजह से आई कि उन्होंने सही रहनुमा और गलत रहनुमा में इम्तियाज न किया। अल्लाह ने उनको इम्तियाज करने की कुव्वत दी थी, लेकिन उनकी हिर्स व तमा ने उन्हें अंधा और बहरा बना दिया। अगर हकीकी अंधा हो तो अल्लाह की रहमत उसकी दस्तगीरी करती है, और अगर लालच का अंधा हो तो उसकी मगरूरी नाकाबिले मुआफी है। इंसान खुद अपने हसद की वजह से सजा और तकलीफ में मुब्तला हो तो उसकी माफी नहीं होती। इंसान को चाहिए कि कोई काम करने से पहले उसका आगाज और अंजाम दोनों को देखे। जो सिर्फ दुनिया का भला देखता है गोया वो एक आंख वाला है। इंसान की आंख को हैवानात की आंख पर यही फजीलत हासिल है कि इंसान अंजाम पर भी निगाह रख सकता है। जिल्द 4 हिकायत नंबर 53। रोजी की तलब में गुलाम के रुक्का लिखने के किस्से का बकिया। वो गुलाम बादशाह को रुक्का लिखने से पहले दरोगा मतबख के पास गया कि कुछ खा ले। दरोगा ने उसे कम दिया। वो बोला, ऐ कंजूस, सखी बादशाह के लंगर से तू मुझे कम देता है। ऐसा नहीं हो सकता कि मेरी रोजी पर बादशाह का ध्यान हो और वो कम करने का हुक्म दे। दरोगा ने बहरचंद समझाया कि तेरी रोजी शाही हुक्म से कम की गई है, लेकिन वो न माना और बोला कि ये तूने अपने इरादे से किया है। दरोगा बोला, तीर को न देख, चलाने वाले बाजू की तरफ तवज्जो कर। जंगे बदर में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मुट्ठी मट्टी फेंकी तो अल्लाह ने फरमाया कि ये मैंने फेंकी है। ये बात इंतहाए कुर्ब की वजह से कही गई। जो लोग कुर्ब फराइज से नावाकिफ होते हैं वो हकीकत और मजाज की फजूल बहस में पड़ जाते हैं। दरोगे से झगड़ने के बाद वो गुलाम घर गया और बादशाह को गुस्से से भरा हुआ खत लिखा। उसने खत में बादशाह की तारीफ की कि तेरी सखावत अबर से भी बड़ी हुई है, लेकिन वो जो कुछ देता है रोते हुए देता है। बज़ाहिर खत में तारीफ की गई थी, लेकिन उसमें गुस्से की बू मौजूद थी। इंसान के अमाल अगर हुस्न नीयत से खाली हों तो बेरौनक होते हैं, जैसे कि उस गुलाम की तारीफ थी। अगर दिल में अदावत हो और जुबान पर तारीफ हो तो अपनी तारीफ से ममदूह खुश नहीं होता। इंसान दिल की सफाई के साथ अलहम्द पढ़े और तारीफ करे तो तेजी से मरातिबे आला हासिल कर सकता है। जुबान पर तस्बीह और दिल में गाय या गधे का ख्याल हो तो इस तरह की तस्बीह का क्या असर होगा। हदीस कुदसी है कि अल्लाह तुम्हारी सूरतों और मालों को नहीं देखता है, तुम्हारे दिलों और अमलों को देखता है। अस्सलामु अलैकुम। पूरी किताब देखने के लिए हमारे YouTube चैनल सूफी समा की प्लेलिस्ट में जाएं। यहाँ आपको मुख्तलिफ बुजुर्गों की किताबें मिलेंगी और जो किताब पूरी ना हुई उस पर काम तेजी से हो रहा है और रेगुलर बेसिस पर अपलोड होती रहती हैं। आपसे गुजारिश है कि आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर लें ताकि हमारी आने वाली किताबें
آپ کو ملتی رہیں۔ جزاک اللہ خیر۔